Is the screen visible to all of you? Just a minute. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ক্লাস চালু করলাম। ডিজিটাল প্যাড স্ক্রিন শেয়ার কিসে, কি কি অন করেছিলেন? হ্যাঁ, রেকর্ড অনলাইন ক্লাস। আচ্ছা, তাহলে আওয়াজ আসবে না আপনার। হুম, ওটা আপনার ডকুমেন্টে যান, ডকুমেন্টে গিয়ে দেখুন এ পাওয়ার শর্ট বলে একটা। ইজ দ্য স্ক্রিন ভিজিবল? Is the screen visible to all of you? Am I audible? Is the screen visible to all of you? Hello? Is the screen visible to all of you? Hello? Is the screen visible? Yes, sir. Okay. Sir, Okay, okay, okay. Okay, okay. एक मिनट। Okay. So in previous class, we have started the con kindly mute yourself if anyone on mute. Kindly mute yourself. Okay, thank you. So in previous class, we have started about convolution, and in that class, half portion of a convolution related problem we have done. So see, the question was x of n is given, h of n is given, and you have to find out the convolution sum. Okay. So according to the process of step of the convolution, we have to follow some steps and we have to do the solve the problem according to that particular steps. The first one is we have to write the equations, that is x of n, h of n. Then from that, now we have to find out the starting position of the convoluted result and as well as ended result from the equation n plus m, or n1 plus n2 and n3 plus n4. Okay. Now third step is we have to replace the n with k. That is h of n will be replaced by h of k as well as x of n also replaced by x of k. So value will be the same. Next we have to fold the h of k, that is h of k becomes h of minus k. Now I have to, or we have to put the formula of the convolution. So to put the convolution formula, we have to start of the value position of the y from the start position of yn. That is starting position is -1, so we have to start with y of -1 up
to ending position is y of n, so we have to do the calculation up to y of 5. ठीक है, so that is minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. These values we have to calculate. Now come to the calculation point. Each and every position, value of each and every position we have to calculate from the formula of the convolution. Up to this we have done in our previous class. Now we will process further, we will go for further process. So today we starting from the, we will start from the calculation part, that is step number 6. So step number 6 we will start. So in that case, starting position or position is n equal to minus 1. That means y of minus 1 we have to calculate. So according to the convolution formula, y of n equal to summation of k is minus infinity to plus infinity x of k h of n minus k. x of k h of n minus k. ठीक है, सो नाउ एम आई ऑडिबल ना? बिकॉज यहां से अगर किसी को मेरा वॉइस कटता है, ठीक है, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, क्योंकि मैं सिम कार्ड से कनेक्टेड हूं. अगर बाय चांस फोन आता है तो मे बी नेट स्विच करता है वन सिम टू अनदर सिम, तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप करो, देन आई विल टेक द स्टेप्स. ओके, otherwise even I will not aware of disconnection or discontinuity of the connection. Okay, so kindly inform me if any technical problem you are facing regarding my voice or visibility of the screen, then kindly inform me. तुरंत inform करो मेरे WhatsApp नंबर पे, ठीक है. So now y of n, तो y of n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा. सो देखो y ऑफ माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ माइनस 1, सॉरी यहाँ पे x ऑफ k h ऑफ माइनस 1 माइनस k. So now we have to find out this, because x of k we know the value, that is 3, 2, 1, 2 starting from 3, but we have to find out h of minus 1 minus k. So देखो, in previous class we have found out the value of h of minus k, that is h of minus k का वैल्यू कितना है, that is 2, 1, 2, 1. ये वाला पोर्शन ध्यान से गौर करना, ठीक है, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहीं पे गलती होता है. सो h ऑफ माइनस के माइनस 1, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, h ऑफ माइनस के माइनस 1 लिख सकते हैं. तो h ऑफ माइनस के ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो इसके साथ माइनस 1 हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर शिफ्टिंग थ्योरी. ठीक है, टाइम शिफ्टिंग, हम लोग क्या पता है कि माइनस 1 अगर होता है या माइनस कोई भी m होता है तो वो डिले होगा, एंड प्लस m होता है तो वो सिस्टम एडवांस होगा. सो डिले होगा तो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, और एडवांस होगा तो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट. ये मेरा टाइम शिफ्टिंग थ्योरी से या टाइम शिफ्टिंग मेथड से मुझे पता है. ठीक है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. सो नाउ सेम प्रोसेस को मुझे काम में लगाना है, दैट इज h ऑफ माइनस के माइनस 1, दैट मीन्स इट विल शिफ्टेड बाय 1 यूनिट. ये जो एरो है वो 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा. तो 2, 1, 2, 1. नाउ एरो यहां से स्टार्टेड था माइनस के का, अब डिले हो जाएगा, दैट मीन्स अब वो 1 से स्टार्ट होगा. सो इट विल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोर्शन, एक स्टेप शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब वही स्टेप एक स्टेप शिफ्ट कर जाएगा. तो देखो ये डिले हो गया. नाउ पुट दैट वैल्यू
y of -1 equal to k equal to minus infinity to plus infinity x of k ठीक है, x of k h of -1 minus k, ठीक है। नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ x ऑफ k, सिंपली ये सब पुट करने की अब जरूरत नहीं है। सो x ऑफ k का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 2 1 2, स्टार्टेड फ्रॉम 3, दैट इज 3 2 1 2 मल्टीप्लाइड विथ h of 1 minus k का वैल्यू क्या है, 2 1 2 1, and it will started from 1. So according to the signal multiplication, ठीक है, पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे देखो, जीरोथ पोजीशन विल मल्टीप्लाइड विथ जीरोथ पोजीशन, सो 3 विल मल्टीप्लाइड विथ 1, यहां से स्टार्ट होगा सिग्नल, ठीक है। नाउ 2, यहां पे राइट वर्ड में एरो का राइट साइड में कुछ है नहीं, मतलब 0, और यहाँ एरो का लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, मतलब ये जितना भी ये पोर्शन है 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ऑल द टर्म्स विल बी 0 एंड दिस ऑल्सो 0। सो इसका वैल्यू हो गया 3, ठीक है। समझ में आया यहाँ, यस और नो? अगर नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहले मुझे बताओ समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू रेज योर हैंड। If any confusion is there during these steps, raise your hand. Raise your hand if any confusion is there. Okay, okay. And if you are going to permit me to go through the next step, then please raise your hand. अगर तुम्हें लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए स्टेप को, तो रेज योर हैंड। ओके ओके, थैंक यू। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, -1 निकल चुका है, तो y ऑफ -1 का वैल्यू आ चुका है, y ऑफ -1 का वैल्यू आ चुका है 3, ये y ऑफ -1 का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज -1 के बाद कौन सा है, y इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 0, दैट मीन्स y ऑफ 0 का वैल्यू हमको निकालना है। सो y ऑफ n एज पर फॉर्मूला k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। सो अगर n के बदले 0 बैठा दो तो क्या होगा, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ 0 माइनस k, ऑब्वियसली माइनस k। सो माइनस k का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, x ऑफ k का वैल्यू हमको पता है 3 2 1 2 मल्टीप्लाइड विथ x ऑफ h ऑफ माइनस k का वैल्यू 2 1 2 1 एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 2, ठीक है। नाउ अगेन पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड 0 है, मतलब इस एरो का लेफ्ट हैंड साइड जितना भी सिंबल रहेगा वो 0 बन जाएगा, तो 0 0, ठीक है। नाउ देखो पोजीशन 0 पे 2 है, 3 और 2 6, और यहाँ पे 2 1 2, फिर से 1 2, यहाँ पे पोजीशन 0 है, ठीक है। नाउ ये जो सिंबल है दिस इज समेशन, सो ये समेशन होगा। नाउ दिस समेशन इज 6 एंड 2 का समेशन, दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8, सो y ऑफ 0 इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, दैट मीन्स y ऑफ 1 का वैल्यू हमको निकालना है। तो अगेन पुट दैट फॉर्मूला, y ऑफ n इक्वल टू k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी
x of k h of n minus k. So now y of 1 equal to k minus infinity to plus infinity x of k h of 1 minus k. नाउ यहां से मेरा सेकेंड टाइम शिफ्टिंग का कैलकुलेशन आएगा. सो देखो एच ऑफ माइनस के मुझे पता है, मुझे एच ऑफ माइनस के का वैल्यू पता है. ठीक है, एच ऑफ माइनस के का वैल्यू पता है, दैट इज 2121, that is 2121 and it started from 2121 and it started from 2. Now 1 minus k can be termed as minus k plus 1. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, yes or no? yes or no? अगर yes है तो raise your hand. Yes, sir. अगर yes है तो raise your hand. If yes, then raise your hand. ठीक है, what about the others? बाकियों का क्या कंक्लूजन है इसके बारे में? लाइक संगीता, राखी, श्रेया, अंकिता, मौमिता, संदीप, हम लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? रेज योर हैंड. Yes, sir. ओके ओके, सो k minus k plus 1. So as per our knowledge in time shifting, प्लस 1 है, क्योंकि ये h ऑफ माइनस के का वैल्यू मुझे पता है प्लस 1 है, तो ये क्या होगा, एडवांस या डिले होगा? एडवांस होगा कि डिले होगा? Sir, advance. ओके गुड. सो एडवांस होगा, दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. सो मेरा h ऑफ माइनस के का वैल्यू ये था, सो h ऑफ माइनस के प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन को. ठीक है, अब टूवर्ड्स दिस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा. सो नाउ इसको हम अब एज पर मेरा जो इक्वेशन उस हिसाब से लिखेंगे. सो y ऑफ 1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ 1 माइनस k, ये क्या हो जाएगा? x ऑफ k का वैल्यू हमको पता है 3212, 3212, ये है मेरा x ऑफ k का वैल्यू, और ये हो जाएगा 2121 एंड इट विल बिकम दिस समेशन. ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे पोजीशन वाइज. पहले समेशन लिखेंगे पोजीशन वाइज. 3 जीरोथ पोजीशन पे 0, तो लेफ्ट हैंड पोजीशन 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 0. नेक्स्ट 3 विथ मल्टीप्लाइड विथ 3, दैट इज 1, that is 3 and it is the starting position. Now 2 multiplied with 2, that means 2 cross 2. 1 multiplied with 1, that is 1 cross 1, and 2 multiplied with, और कोई डेटा नहीं है तो 2 multiplied with 0. So this will your equation. So now it becomes summation 0 3 4 1 0. So now summation is 3 plus 4 plus 1 equal to 7. So x of 1 equal to, sorry 7 like 8, so 8. Okay, so x of 1 equal to, y of 1 equal to 8. Similarly, you will find out the value of y of 2, y of 3, y of 4 and y of 5. ठीक है, so I expect you will find out all these value by the next class.
नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क द वैल्यू। ओके, हो जाएगा? निकाल पाओगे? Yes, sir. ओके, नाउ few methods of convolute two signals are also available, that is known as alternate method। alternate methods, because देखो कन्वोल्यूशन जो होता है वो एक लॉन्ग मेथड से पोजीशन वाइज वन बाय वन हम उसको निकालते रहना है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया गया कन्वोल्यूशन निकालो तो एक क्वेश्चन के पीछे ही तुम्हारा आराम से 10 मिनट चला जाएगा, विच इज नॉट permitted or which is not accepted whenever you are going for any competitive exam or any MCQ type question। जहाँ पे है MCQ टाइप फॉर एनी MCQ टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एक MCQ का क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स रहता है तुम्हारा 1 या 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए तुम इतना क्यों मेहनत करोगे? ठीक है, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ योर वर्क विल नॉट बी जस्टिफाइड। सो टू ओवरकम दिस, some alternate methods also implemented, and among those alternate methods, two methods you can use in any kind of convolution related problem if and only if the given marks is less than 3। 3 से कम अगर मार्क्स तुम्हारा असाइन रहता है तो तुम ये ऑल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हो, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। और एक हो सकता है, अगर मेंशन कर दिया गया है कि ट्रेडिशनल या नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन मेथड से यूज करके निकालो वैल्यू, तो तुम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। until and unless it is mentioned in the question, you can't apply alternate methods or you will not get the marks। और एक होता है, अगर 3 मार्क्स से कम है कॉन्वोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन में, सो यू कैन अप्लाई ऑल्टरनेट मेथड्स। और ये ऑल्टरनेट मेथड क्या क्या है? एक है टैबुलर मेथड, और एक है तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड। ये दो मेथड्स तुमको ऑल्टरनेट मेथड्स हिसाब से काम आएगा। पहले हम आते हैं टैबुलर मेथड पे। सेम क्वेश्चन ले लो, x of n इक्वल टू 3, 2, 1, 2 एंड h of n का वैल्यू कितना है? 1, 2, 1, 2। h of n का वैल्यू है 1, 2, 1, 2 and it is started from 2। ठीक है, so now we have to use the tabular method। टैबुलर मेथड हम यूज करेंगे। नाउ टैबुलर मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एज यूजुअल के का एंटायर चीज को मुझे के में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एच ऑफ के 1, 2, 1, 2 मेथड में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एच ऑफ के को फोल्ड करना पड़ेगा, that is 2, 1, 2, 1 and it is started from this 2। ठीक है, नाउ मुझे टेबल प्लॉट करना पड़ेगा। इसका मेथड है के का वैल्यू होगा एक में और एक में होगा एक्स ऑफ के का वैल्यू। दो टेबल 2 हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाएगा मेरा एन का वैल्यू। ठीक है, एन का स्टार्टिंग वैल्यू वही कैलकुलेशन है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम, इसका 0 है
इसका -1 है, सो -1, so n will be started from n equal to -1, n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and lastly n equal to 5. So that will be the limit of n. नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस पोर्शन में मैं h का वैल्यू लिखूंगा, दैट इज h ऑफ n माइनस के, दैट इज -1 माइनस के, दैट इज माइनस के, 1 माइनस के, 2 माइनस के, 3 माइनस के, 4 माइनस के, 5 माइनस के। ठीक है, नाउ हो गया। नाउ मुझे जीरो लेना है, एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू, एन इक्वल टू एक्स ऑफ के का वैल्यू जीरो से लेना है। ठीक है, जीरो से, यहाँ पे मैं जीरो, ये टेबल का जो मिड पोर्शन है वहां पे एक आर्बिट्रेरी जीरो में पोर्शन से लूंगा। ठीक है, सो सपोज ये जीरो पोर्शन से चालू हुआ है, तो इसको जीरो से लूंगा। तो इसको जीरो से लूंगा। ठीक है, जीरो के इस साइड, सो एक्स ऑफ के का वैल्यू, एक्स ऑफ जीरो, पहले मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 3, 2, 1, 2, ये मैं 3 का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, नाउ मैं अब एज पर मैं सबसे पहले जो क्या करूंगा, 100 एच ऑफ माइनस के का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, अच्छे से ये मेथड को समझ लो, एच ऑफ माइनस के का वैल्यू पुट करूंगा, तो एच ऑफ माइनस के का वैल्यू देखो, एच ऑफ माइनस के का वैल्यू है 2 1 2 1, 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 1, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे -1 डिले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 है, तो डिले होगा तो ये कर्सर यहाँ से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 2, 2 1 2 1, सो ये 2 1, सो 1 2 1 2। ठीक है, ये हो गया। नाउ यहां से जितना भी है n इक्वल टू 1 से ये एडवांस होगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंटर है लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मतलब सीक्वेंस राइट की तरफ जाएगा, दैट मीन्स 1 2 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगेन -2, मतलब यहां से एक शिफ्ट होगा, सो यहाँ पे 2 1 2 1, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 1 2 1, फिर यहाँ पे और एक शिफ्ट होगा 2 1 2 1, फिर ये जो आ जाएगा वहां पे एक शिफ्ट हो जाएगा 2 1 2 1। पहले से पोजीशन में मेंशन नहीं करूंगा, मैं पोजीशन एकदम लास्ट में अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस में मेंशन करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम। ठीक है, एंड ये जो पोर्शन में है ये जीरो बैठ जाएगा। नाउ अब तुम इसको डिवाइड कर दो, अब तुम इसको डिवाइड कर दो।
ठीक है, ये हो गया एक डिवीजन। ये हो गया दूसरा डिवीजन। नाउ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इधर भी सेम थिंग, इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, और इधर एक हो गया। सो टोटल डिवीजन कितना हुआ देखो, 0 1 2 3 4 5 6, और इधर हो गया -1 -2 -3, -3 तक हो। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अब सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो y ऑफ n, मुझे x ऑफ n को x ऑफ n का वैल्यू को, ठीक है, हर एक के साथ मल्टीप्लाइड एडिशन करना है। तो पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3, बाकी सब में खाली है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 3, कॉमा, फिर इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एंड एडिशन करेंगे। तो 3 इंटू 2 6, प्लस 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 दैट इज 8। फिर इसको क्या करेंगे, थर्ड, तो यहां पे देखो 3 इंटू 1 3, प्लस 4 7, प्लस 1 दैट इज 8। नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, प्लस 2 8, प्लस 2 10, प्लस 2 12। ओके, सो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 प्लस 1 5, प्लस 4 दैट इज 9। फिर इधर जाएगा, देखो ये दो 0 है तो इस दोनों का कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू 2 2, प्लस 2 दैट इज 4। फिर नेक्स्ट आएगा इसके साथ, सॉरी 1 भी आएगा, 1 भी आएगा। सो यहाँ पे पहला 3 0 है तो ये 3 0 आ जाएगा, सो 2 प्लस 2 इंटू 2 4। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एज पर आवर रूल दैट इज -1 से स्टार्ट हो रहा है, सो ये जो पहला स्टेप होगा ये -1 है और ये 8 है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 0। सो इजीली इट कैन बी डन। सो एनी इशू, एनी डाउट्स in tabular format, alternate format? Anyone has any doubts? Anyone has any doubts regarding this alternate method? No, sir. Okay. Next is, इस इसमें भी देखो टाइम लग रहा है। अगर सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तुम्हारा ये क्वेश्चन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन फंडा क्या होता है, टाइम। तो टाइम हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के पीछे 1 से 1.5 मिनट देंगे, उससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे कोई भी क्वेश्चन के पीछे। 1 से 1.5 मिनट, हार्डली 2 मिनट। सो इसमें देखो 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है। ऊपर से अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है, पोजीशन कहीं से भी गलत हो गया हड़बड़ी में, तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे भी शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, वो एक्चुअली यूज तब तक नहीं करोगे जब तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, या कोई एमसीक्यू अटेंड नहीं कर रहे हो जिसका एलोटेड मार्क्स लेस देन 3 है। तब तक ये मेथड मैं सजेस्ट करूंगा यूज मत करना। ठीक है, दैट मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यूज ओनली इन एमसीक्यूज और फॉर फाइनल वेरिफिकेशन।
कि तुम्हारा मैटलैब कन्वोल्यूशन किए हो लॉन्ग प्रोसेस में, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए कि मेरा प्रोसेस सही है कि नहीं, आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तुम मैट्रिक्स मेथड कर सकते हो। बट कभी भी इसको मेन मेथड या मेन स्ट्रीम क्वेश्चन में यूज मत करना, ठीक है। सो ये मेथड क्या कहता है, दैट इज x of n is given, that is 3 2 1 2, x of n is given 3 2 1 2 and h of n is given 1 2 1 2। ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, यहाँ पे कोई फोल्डिंग माइनस के ये सब लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ये एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स का दो रहता है, एक रो वाइज एक कॉलम वाइज, दैट इज 2 है, ठीक है। तो कॉलम पोर्शन में हम लिखेंगे एक्स ऑफ एन, रो पोर्शन में लिखेंगे एच ऑफ एन, और ऊपर लिखेंगे एक्स ऑफ एन, नीचे लिखेंगे एच ऑफ एन, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स से बाहर है। तो यहाँ पे मेरा एक्स ऑफ एन का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 3 2 1 2, और यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट को, ईच रो को ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 1 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, सो 6 4 2 4, 1 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, दैट इज 3 2 1 2। नाउ 2 को अगेन मल्टीप्लाई कर दो एक्स ऑफ एन के साथ, दैट इज 6 4 2 4। नाउ क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट, दैट इज ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट 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 है, और ये रह गया बाकी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, तो पहला कितना आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 6 और 2 8, उसके बाद आएगा 3 7 1 8, उसके बाद आएगा 6 2 8 2 10 2 12 आ गया, उसका 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 4 4। देखो आंसर सेम आ रहा है, एंड एज पर योर, देखो यहाँ से मेरा मैक्सिमम -1 है, सो -1 से स्टार्ट होगा, तो -1 यहाँ से 8 से स्टार्ट हुआ, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y ऑफ n। सो ये एमसीक्यू अगर रहा तो इसके पीछे हार्डली 20 to 25 सेकेंड, हार्डली मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इजीली कन्वोल्यूशन यू कैन कैलकुलेट। So this method is very much effective only in case of MCQs and for competitive exam and for final verification। जैसे मैं ये समेशन करूंगा, ठीक है, कन्वोल्यूशन सम करूंगा, ठीक है, अंत में मुझे कोई भी रिजल्ट आया, ऑब्वियसली दैट विल कंज्यूम 2 to 3 पेजेस इन स्टैंडर्ड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो 2 to 3 पेजेस मुझे ऑक्यूपाई होगा, तो 2 to 3 पेजेस ऑक्यूपाई होगा, एंड ईच टोटल रिजल्ट इज रिलेटेड टू द previous steps। So obviously maybe something wrong calculation may be happened, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा एकदम फाइनल में जब तुम आंसर लिख रहे हो, तुरंत एक रफ पेज में क्या करोगे, ये मैट्रिक्स मेथड यूज करके देख लोगे तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तुम्हारा यहाँ का वैल्यू जो है नॉर्मल मेथड में वो वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसको नॉट डोंट यूज इन नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन सम, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हाँ। अगर तुम 4 या 2 3 नंबर के क्वेश्चन में, या 2 नंबर के क्वेश्चन अगर होगा एमसीक्यू रिलेटेड छोड़ के,
वहां पे अगर इसको करोगे तो ये पूरा काट देगा, जैसे ही देखेगा तुम मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हो पूरा क्वेश्चन को काट देगा, जीरो बैठा देगा। ठीक है, सो दिस इज convolution. Now move to the correlation. ठीक है, सो कोरिलेशन क्या होगा? सपोज कोरिलेशन, मैं आज थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोरिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा और कोरिलेशन के बारे में बताऊंगा। कोरिलेशन, सो कोरिलेशन का मतलब क्या है? एनी आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन कोई बता सकते हो क्या होता है? एनी आइडिया? सपोज आई एम सेइंग दैट मौमिता और तानिया के बीच में कोरिलेशन क्या है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या समझाना चाहता हूं? मौमिता और तानिया को कोरिलेट करो, दैट मीन्स और मैं अगर कहूंगा अभी जो क्लास में प्रेजेंट है दैट इज दीचिका, संगीता, राखी, श्रेया, मौमिता, तानिया, संदीप, इन दोनों को Yes, इन sir. इन सभी को कोरिलेट करो, तो उसको क्या, उसका मतलब क्या निकलता है? अगर मैं बोलूंगा कोरिलेट करो तो उसका मतलब क्या निकलता है? एनी आइडिया? सर एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे सबका। ठीक है, कनेक्शन करोगे। पैरामीटर क्या होना चाहिए? पैरामीटर क्या होना चाहिए? What should be the parameter? Have you any idea? Yes or no? Simply yes or no. Parameter क्या होना चाहिए? Have you any idea? If no, then I will explain. Have you any idea? If no, then I will. नो सर। ओके, सपोज मैं जब बोल रहा हूं कि दीचिका के साथ राखी का कोरिलेशन निकालो, तो क्या होगा? दोनों का पैरामीटर बीटेक होना चाहिए, सिर्फ बीटेक ही नहीं, दोनों का पैरामीटर ईसी होना चाहिए, सिर्फ ईसी ही नहीं, दोनों का पैरामीटर फिफ्थ सेम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फिफ्थ सेम ही नहीं, दोनों का पैरामीटर सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, दैट इज डीएसपी होना चाहिए, तभी मैं कोरिलेशन निकालूंगा। सो द व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन सिग्नल्स, ठीक है, मे बी वन से वन और मोर देन वन सिग्नल्स, देन वी कैन से they must occupy the same parameters, that is scale, that is दोनों को एक ही टाइप का सिग्नल होना चाहिए, आइदर डिजिटल होना चाहिए और एनालॉग होना चाहिए, ठीक है, आइदर सीक्वेंस होना, दोनों को सीक्वेंस होना चाहिए, अगर सीक्वेंस है तो दोनों को सीक्वेंस होना चाहिए, अगर तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दैट इज कोरिलेशन। देखोगे क्रिकेट मैच तुम लोग सभी ने देखे हो, हाल ही में वर्ल्ड कप T20 गया, आईपीएल गया, तो देखोगे क्रिकेट में जब कोरिलेशन दिखाता है दोनों टीम का, तो डिफरेंट टाइप कोरिलेशन दिखाता है। एक बार में दिखाता है, दैट इज पहला ओवर में इसका रन रेट इतना था, दूसरे टीम का रन रेट इतना आ रहा है, दूसरे ओवर में एक टीम का रन रेट इतना आया तो दूसरा टीम का रन रेट इतना आया था। तो बार में जब दिखा रहा है दोनों का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ बार, ठीक है, ग्राफ में जब दिखा रहा है दोनों का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, और जब डेटा में दिखा रहा है दैट इज आफ्टर 5 ओवर्स टीम 1 रन था तुम्हारा 25, टीम 2 का रन था, सपोज 30, आफ्टर 10 ओवर टीम 1 का रन था सपोज पकड़ के चलो 60 और टीम 2 का रन था 59। सो ये जो कोरिलेशन निकाल रहा है दोनों ही डिजिट्स में निकल रहा है,
ठीक है, तो whenever we are going to relate two or more than two signals, then one or more than one signals, then we have to select the same parameters for the signals. And definition of the correlation, अगर definition बोलो चाहोगे तो correlation is the measure of degree to which two signals are similar. कि हमको डिसिमिलर सिग्नल से कोई मतलब नहीं है, हम मेजर वही चीज करेंगे जहां पे दो सिग्नल का सिमिलरिटी हो। एक स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट का मार्क्स बुरा आ रहा है, तो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि दोनों का जो पैरामीटर है सिमिलर पैरामीटर होना चाहिए, दोनों को बीटेक 6 सेम 5th सेम ईसी होना चाहिए और ग्रेडिंग सिस्टम दोनों का 10 होना चाहिए। इसीलिए देखो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी बीटेक या एमटेक का क्राइटेरिया या तुम्हारा रिक्रूटमेंट निकलता है, वहां पे सीजीपीए वाईजीपीए या डीजीपीए देता है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव ग्रेड प्रोसेस वहां पे सीजीपी देता है, ठीक है, आउट ऑफ 10 ये ऑल ओवर है, तो वो सिमिलर सेम पैरामीटर जो है वो सिमिलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करके उसका रिलेट निकालता है। तो डेफिनेशन ऑफ द कोरिलेशन, इफ यू आर सर गोइंग टू, सर योर वॉइस अभी ठीक सर है, अभी ठीक है, ये सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो रहा है प्रॉपरली। एक मिनट रुको, नाउ इज इट विजिबल? अभी विजिबल हो रहा है? नो सर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। अभी विजिबल हो रहा है? सर ठीक है। अच्छा अनुपम ठाकुर, तुम कहाँ थे इतना टाइम तक? एक्चुअली बैंक गए हुए थे। ओके फाइन। ओके, सो नाउ कोरिलेशन का अगर हमको डेफिनेशन निकालना पड़ेगा तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? कोरिलेशन, कोरिलेशन is the measure of the degree to which two signals are similar. That is the definition, traditional definition of correlation. ठीक है, so now this correlation also okay, so this correlation also measured in two way, that is types of correlation, that is correlation, correlation measuring मेथड। सो ये दो टाइप का मेथड है, एक है क्रॉस कोरिलेशन, एक है ऑटो कोरिलेशन। क्रॉस कोरिलेशन कब होता है? टू डिफरेंट सिग्नल्स, एक है एक्स ऑफ एन, दूसरे को लिया जाता है एच ऑफ एन, ठीक है, मतलब दो डिफरेंस एच ऑफ एन, वाई ऑफ एन, वॉट एवर इट मे बी, अगर दो डिफरेंट सिग्नल होता है देन
क्रॉस कोरिलेशन विल बी टेकन। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन होता है सेम सिग्नल डिले करके लेते हैं। एक सिग्नल को नॉर्मल लेते हैं, दूसरे सिग्नल को डिले करके लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है टू टाइप्स का। जैसे टू डिफरेंस, तुम्हारे साथ अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी स्टूडेंट का रिलेशन कोरिलेशन निकालूंगा, जैसे तानिया के साथ मौमिता या तानिया के साथ दीजिका, मौमिता के साथ संगीता, तो दो डिफरेंट सिग्नल का मैं अगर रिलेशन निकालूंगा तो क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन कब है? सपोज मैं श्रेया को बोलूंगा कि तुम्हारा जो टेंथ का एज ए स्टूडेंट तुम टेंथ में जो थे, एज ए स्टूडेंट फिफ्थ सेमिस्टर बीटेक में तुम जो हो, इन दोनों का रिलेशन निकालो। तो देन जो सिग्नल प्रेजेंट है उसका डिले पार्ट से खुद का रिलेशन निकालना, दैट इज ऑटो कोरिलेशन। ऑटो मतलब खुद से ही चालू होता है। ठीक है, तो खुद के साथ खुद का जो कंपैरिजन है एक ही स्टेट में नहीं ले सकते। ठीक है, मैं एज ए टीचर मैं 2021 में कैसा टीचर, मेरा इंप्रूवमेंट क्या कैसा हुआ, ये ऑब्वियसली मैं 2021 को 2021 से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं 2020 में कैसा पढ़ाता था उसके साथ 2021 में कैसा पढ़ा रहा हूं, ये दोनों का रिलेशन रिलेट करता हूं, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, रिलेशन निकाल पाऊंगा, कोरिलेशन निकाल पाऊंगा, दैट इज ऑटो कोरिलेशन। सो इन नेक्स्ट क्लास we'll study about cross correlation and auto correlation. Okay, so till now any doubts? If no, raise your hand, I will conclude the class. If you have any doubts, raise your speak out, or if you don't have any doubts, raise your hand, then I will conclude the class. Have you any doubts? Have you any doubts? Raise your hand. Then it is known as cross correlation, two different signals. अगर एक ही सिग्नल खुद के साथ रिलेट करते हो, लाइक मैं अभी कैसे पढ़ा रहा हूँ, या एज ए टीचर में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, क्राइटेरिया परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं खुद के साथ खुद को कंपेयर करूंगा। तो कैसे कंपेयर करूंगा? ऑब्वियसली 2021 में मैं कैसे पढ़ाता हूं इसको कंपेयर करने के लिए मुझे डिले सिग्नल्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। दैट मींस 2020 में मैं कैसे पढ़ाता था, 2019 में कैसे पढ़ाता था, एंड 2018 में कैसे पढ़ाता था उसको कंपेयर करूंगा 2021 में कैसे पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट सिग्नल, सेम सिग्नल अगर है तो एक होगा प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट स्टेट, और दूसरा सिग्नल हम लेंगे डिले, मतलब पास्ट स्टेट। डिले में मैं कैसे पढ़ाता था, दैट इज 2021 माइनस वन, दैट इज 2020 में कैसे पढ़ाता था, दैट इज कंपेयर करूंगा। सो ऑटो कोरिलेशन दैट मींस सेम सिग्नल जहां पे एक सिग्नल होगा डिले पार्ट और दूसरा होगा प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. Okay, so have you any doubts? If no, then raise your hand, I will conclude the class. That much for today. Next class, okay, next class I will discuss about cross correlation and auto correlation. Okay, so I am going to conclude the class. Thank you all. Thank you, sir. ছবি লাগতো আমি কালকে পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি ক্লাসে ছিলাম। বুঝেছি, বুঝে গেছি। হুম, ঠিক আছে, হুম। ঠিক আছে।